ईद उल फितर का मुकद्दस त्यौहार आपको बहुत बहुत मुबारक। हज़ारों की तादाद में यहाँ पर रोज़ेदारों ने नमाज ईद उल फितर अदा की और कहीं न कहीं पे अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर देखें तो सिक्योरिटी के खातिर खा इंतजाम किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर रामबंद बसीरुल हक चौधरी और SSP रामबंद भी जो है यहाँ पर बानिहाल के अंदर मौजूद है और इस प्रोग्राम का मज़ीद जायज़ा आप तक हम लाने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ रहिए। مختلف بیماری اربلان میں مسال کی بیماروں بدل شفا ہسپتال من سے بیمار گھر من سے بیمار یک مجموع ملازم کی خبر مل جاتی بیمار ایروبا صاحب بیمار بدل شفا۔ جس طرح سے ہم ضلع ایڈمنسٹریشن کی بات کرے تھے تو ڈپٹی کمشنر رامبند نے بھی آج بانیہال کے اندر ہی جو ہے عید نماز ادا کی۔ ان کے ہمراہ SSP رامبند کلبیر سنگھ جی SDPO بانیہال یا جو ہمارے ٹریفک DSP سریندر پال سنگھ بھی جہاں پر موجود ہے۔ کل ملا کے جو پوری ایڈمنسٹریشن ہے سر بہت بہت شکریہ۔ کیا کہنا چاہیں گے سر عید الفطر کے اس مقدس موقع پر جہاں پر ایک خوشگوار ماحول میں جو ہے لوگوں نے نماز ادا کی؟ دیکھو سب سے پہلے تو اس خوشگوار موقع اور اس بڑے فضیلت والے موقع پہ میں آپ تمام جو یہاں پہ بانیہال کی عوام ہے، رامبند کی عوام ہے، پوری جموں کشمیر ہندوستان پورے سب سے پہلے تو میں ان کو عید کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ اس طریقے کی عید اور آپسی بھائی چارہ جو ہے وہ ان کا آنے والے سالوں میں بھی اسی طریقے سے رہے۔ اور دوسری جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو کمیونٹیز ہماری مل کے جو ہے وہ الگ الگ فیسٹیول جو ہیں وہ ایک ہی دن ایک ہی جگہوں پہ جو ہے وہ مل کے منا رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ قومی یکجہتی اور قومی بھائی چارے کی جو ہے وہ ایک بہت زندہ مثال ہے اور اس سے ہمیں قائم بھی رکھنا چاہیے، اسی سے ہماری انسانیت کا ایک تقاضا بڑھتا ہے۔ بالکل سر، رامبند ضلع جو ہے بھائی چارے کے لیے مانا جا رہا ہے اور آگے بھی جو ہے اس سے زیادہ امیدیں جو ہے کر سکتے ہیں سارے جتنے بھی ہم یہاں پہ رامبند ضلع کے لوگ ہیں، یوپی جموں کشمیر کے لوگ ہیں۔ تو یہاں پر اب عید الفطر کے ساتھ ساتھ اب نوراترا بھی جو ہے وہ شروع ہے، کس طرح سے مطلب جو ہے پلان کیا گیا ہے سیکورٹی اعتبار سے یا ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے؟ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس سیکورٹی کے انتظامات کے لیے سب سے اچھی چیز جو ہے جو کمیونٹی کی پارٹیسپیشن اور ان کا جو ہے تعاقب ہے اور ان کی جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ یہ بھائی چارہ قائم رکھنا، مجھے لگتا ہے کہ یہ یہاں کے لوگوں کے لیے مبارکباد ہے سب سے پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری پوری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی ٹیم ہے جس میں ہمارے جو SSP کلبیر صاحب ہیں وہ ایک لیڈ لیتے ہیں اور اس میں جو ہے پورا پراپر جو ہے وہ سیکورٹی کے ارینجمنٹ کیے جاتے ہیں، کس طریقے سے کیا جو ہے وہ سیکورٹی کے انتظام کرنے ہیں ڈفرینٹ جگہوں پہ وہ کیے جاتے ہیں پراپر۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ اس سے پہلے بھی جو ہے وہ کافی اچھے سے فیسٹیول جو ہے وہ منائے گئے ہیں اور آج بھی منائے جائیں گے۔ اور جس طریقے کا یہ آپسی بھائی چارہ ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ دنیا میں ایک مثال بھی ہے اور یہ اسی طریقے سے پروان چڑھتے ہوئے پھنستے پھولتے ہیں۔ سر لاسٹلی اینی کائنڈ آف میسیج جو ہے مجھے بڑا اچھا لگا آج کے یہاں پہ جو امام صاحب ہیں، میں یہاں کی عوام کو خاص کر جو یہاں کے امام صاحب ہیں ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت ہی اچھی بات جو ہے وہ آج اپنے اس جو اپنا ان کا خطبہ تھا اور اس خطبے کے بعد لوگوں کو ایڈریس کرنے کا جو تھا اس میں کہ کس طریقے سے ڈرگس کی وجہ سے ہمارے نوجوان جو ہے وہ پریشان رہے ہیں اور اس کی وجہ سے بہت ساری اموات بھی ہوگی، ہمارے بہت سارے نوجوان جو ہیں وہ اس وجہ سے جو ہے وہ اس دنیا فانی میں نہیں رہے۔ لیکن یہ جو ہے یہ درشاتی ہے کہ کس طریقے سے چاہے وہ ریلیجیس ہیڈ ہو چاہے وہ یہاں کی عوام ہو، کس طریقے سے وہ ایک ساتھ جڑ کے اس جو وبا ہے خاص کر جو یہ ڈرگس کی اس کو جو ہے جڑ کے کس طریقے سے ختم کریں گے تاکہ ہمارا آنے والا مستقبل جو ہمارے نوجوان ہیں وہ بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے جو ہے وہ صحت مند رہیں اور کمیونٹی میں اسی طریقے سے جو ہے وہ اپنا کاروبار اور کام جو ہے وہ نبھاتے رہیں۔ اور میں پھر سے جو ہے وہ امام صاحب کو اس کی بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے یہ میسیج آج، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو 10-12 ہزار سے زیادہ کی جو ہے وہ یہاں پہ شمولیت تھی اس نماز میں اور مختلف علاقوں سے جو ہے وہ لوگ یہاں پہ آ کے نماز پڑھ رہے تھے اور یہ میسیج وہ جو ہے امام صاحب کا، اگر DC بولے گا تو ہو سکتا ہے اس کا اثر کم ہوتا ہے، لیکن اگر امام صاحب بولتے ہیں کیونکہ وہ امامت کرتے ہیں پورے علاقے کی، پورے کنبے کی، تو ان کی بات میں جو ہے مجھے لگتا ہے آج کے دن بہت اثر ہے اور وہ گھر گھر تک وہ میسیج جائے گا اور ہم اس بیماری سے جو ہے وہ نجات پائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ تھینک یو سو مچ۔ SSP کلبیر سنگھ جی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سر آپ کی طرف سے کیا میسیج رہے گی؟ یور گڈ ریچ اٹ ویری ارلی ان بانیہال، تو آپ کے ہمراہ جو ہے LGPO صاحب ہے، SHO آشف صفائی صاحب ہے، پوری پولیس کے افسران ہیں۔ پہلے تو میں سبھی لوگوں کو عید کے اس مقدس موقع پہ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ کس خوش سلوی کے ساتھ اور زندہ دلی کے ساتھ عید منائی جا رہی ہے۔ ہم نے بھی آج فیصلہ کیا، میں نے اور DC صاحب نے، کہ ہم بھی مل کے آپ کے ساتھ یہاں پہ عید منائیں۔
तो दूसरी बात जो अभी जिसका इमाम साहब ने भी जिक्र किया, डीसी साहब ने भी जिक्र किया, ड्रग्स का एक वबा जो है बहुत मुश्किल हमारे लिए बन चुका है। तो हम सब लोग मिल के एज ए सोसाइटी, उसमें मीडिया भी हो, इसमें सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी हों, उसमें पुलिस भी हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, सभी मिल के हम अपने नौजवानों को ये मैसेज दे पहुँचाएँ और उन तक ये मैसेज पहुंचा पाएँ कि हम इस वबा से बाहर निकलें। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़े कौम की सबकी खिदमत होगी। मैं आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू वेरी मच सर। तो यहाँ पर हम ईद स्पेशल प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत पे लेकर आ रहे हैं, तो मजीद कुछ जायजा जो है इस प्रोग्राम के हवाले से आप तक लाने की कोशिश करेंगे। आप हमारे ईद उल फितर के मुकद्दस मौके पर जहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव बात हमने आप तक पहुंचाई, वहीं पे हमारे साथ मौजूद है मेंबर असेंबली बानियाल हाजी सजाद शाहीन साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी तरफ से हम आपको ईद की मुबारकबादी देना चाहेंगे। तो क्या बताना चाहेंगे इस खुशी के मौके पर, आप क्या बताना चाहेंगे जहाँ पर हज़ारों की तादाद में आज लोगों ने ईद उल फितर की नमाज अदा की? खैर मुबारक आरिफ साहब, ईद उल फितर के मुबारक मौके पर मैं उम्मत मुस्लिमा को ख़ासतौर पर जैसे जम्मू कश्मीर के अवाम और बिलखसूस हल्का इंतखाब बानियाल गुल के अवाम को फिर की अमेरिका रही से मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ और अल्लाह ताला से दुआ को हूँ कि अल्लाह तबारक ताला रमज़ान मुबारक के महीने में की गई हमारी सबकी जो इबादत है उसको कबूल करे, हमारे रोज़ों के रखने को कबूल करे और मांगी गई दुआओं को बुलंदी अता करे। आवाम से दर्दमंदाना अपील है कि सादगी से ईद मनाएं, हमसायों का ख्याल रखें, मिस्कीनों का, यतीमों का और जो ज़रूरतमंद है उनका ख्याल रखें और दुआ करें कि रियासत जम्मू कश्मीर जिन तकलीफ़ों से दो चार है, जिन मुश्किलात से गुज़र रही है, अल्लाह हमको इन मुश्किलात से बाहर निकाले ताकि रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम का एतमाद बहाल हो सके और रियासत जम्मू कश्मीर की जो एक खोई हुई पहचान है वो बहाल हो सके, इस रियासत का तकद्दुस बहाल हो सके, इस रियासत का तशख़्ख़ुस बयान हो। तो सर एक बार ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, क्या आपको लग रहा है जिस तरह से SSP रामबद या डिप्टी कमिश्नर रामबद या सारे पुलिस के अफसरान भी जो है आज बड़े एक्टिव यहाँ पर देखने को मिले इस ईद उल फितर के मौके पर, आम मतलब हर साल की तरह बड़ी ये खुशाइन बात है कि DC साहब भी यहाँ पे आए, SSP साहब आए और सिविल और पुलिस इंतज़ामिया के जितने भी ऑफिसर्स हैं उन्होंने यहाँ पे हमारे साथ नमाज़ पढ़ी। ये बड़ा खुशाइन बात है। और जहाँ तक सिक्योरिटी का पहलू है, मैं वहाँ ये आपको बता दूँ कि इस वक्त की जो मौजूदा जो मरकज़ी सरकार है जिसके ज़ेर निगरानी रियासत जम्मू कश्मीर में इस वक्त ड्यूटी के जो पुलिस का जो सिक्योरिटी का जो इंतज़ाम है वो बिल्कुल नाकाबिले उम्मीद है, क्योंकि मिलिटेंसी जिस तरह से उन इलाकों में जो इलाके ग्रीन जोन हुआ करते थे रिवाइव हो रही है और बिलावर में आप देखिए, कठुआ में देखिए, बाकी जगहों में देखिए, तो मरकज़ी सरकार होम मिनिस्ट्री नाकाम हो गई है और हम ये उम्मीद करेंगे कि रियासत जम्मू कश्मीर का जो स्टेटहुड है वो बहाल किया जाए ताकि यहाँ पे अमन व अमान एक दफ़ा फिर से कायम हो सके। तो लास्टली सर एनी काइंड ऑफ मैसेज टू द जनरल पब्लिक? अवामुन्नास से यही मेरा पैगाम है कि एक तो दुआ करें कि हम लोगों के ऊपर जो उन्होंने भरोसा किया है, जो एतमाद हमको उन्होंने हमारे ऊपर जताया है, जो उनकी उम्मीदें हम पे हैं, हमारे लिए दुआ करें कि हम उनको निभाने में कामयाब हो सकें। मुश्किलात बहुत हैं लेकिन फिर भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम लोग दिन रात एक करके अवामुन्नास की उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश करेंगे। बस अवाम ने जिस तरह इलेक्शनों में हमारा साथ दिया उसी तरह से हमारा साथ दे और थोड़ा सा इत्मीनान रखें, सब्र रखें। हम अपने किए गए तमाम वादे पूरे करेंगे और 5 साल का हमको मैंडेट है इंशाअल्लाह ताला। जब हम 5 साल के बाद आवाम के पास वापस जाएंगे उनके पास शिकायत करने को कोई भी एक ऐसा मुद्दा नहीं होगा। आप देख रहे हैं ईद उल फितर का स्पेशल प्रोग्राम। मजीद जायजा लेकर मैं आरिफ वहीद आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा, आप हमारे साथ रहिएगा। ईद उल फितर के मुकद्दस मौके पर आपने भी नमाज अदा की,
और हम सब ने रोज़ा रखा, तो क्या बताना चाहेंगे, क्योंकि आज जो हम देख रहे हैं कि हर एक के चेहरे पे नूर है। जी हारिस साहब अस्सलाम वालेकुम। पहले तो उम्मत मुस्लिमा को और बिलखसूस जितने भी पूरे आलम में उम्मत मुस्लिमा है उनको दिल की अम्मी गहराइयों से ईद मुबारक। और हम सब जानते हैं कि ये ईद उल फित्र जो है 1 महीने के रोज़ों के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ये मौका अता फरमाता है। और इसमें जो मैसेज है जो कि मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है हम सबको समझना, वो ये है कि 1 महीने का एक कंपैशन और गरीबों के साथ हमदर्दी और एक टॉलरेंस, पेशेंस, अमन और फाइनली एक गैदरिंग जहाँ पे आप जानते हैं कि हम ईद उल फित्र भी अदा करते हैं। और उसमें यही मैसेज है कि जिस तरह हो सके अपने हमसाइयों को, अपने रिश्तेदारों को और अपने जो है अज़ीज़ और अपने जो गरीब जो होते हैं आसपास उनको देख के, यही एक्चुअल मैसेज है ईद उल फित्र का, ताकि सारे लोग खुशी से इस त्यौहार को मनाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख पा रहा हूँ कि इस मौके पे कम से कम एक ऐसी गैदरिंग होती है जहाँ पे हर कोई गरीब अमीर एक प्लेटफॉर्म होके ये जो है इस मौके को मनाता है। तो अपने आप में एक कंपैशन का मैसेज है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज आपने भी यहाँ देखा कि जिस तरीके से लोग जमा हुए, एक बहुत ही खुशी का मकाम होता है। चलिए, बहुत ही खुशी का मकाम है और लोगों के चेहरों पर, रोज़ेदारों ने जिनने रोज़ा रखा उनके चेहरे पे नूर है। ये नूर बरकरार रहे। मज़ीद लोगों से इस प्रोग्राम, ईद स्पेशल प्रोग्राम के हवाले से बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिए। ईद स्पेशल प्रोग्राम के हवाले से हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या बताना चाहेंगे ईद उल फित्र के मुक़द्दस मौके पर? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले आपके चैनल का और आपका शुक्रिया। अल्लाह ताला का फजल है, करम है, इस बाबरकत महीने से जो हम सब अवाम खुशी खुशी निकल कर आए और रोज़ों का एहतमाम किया। बड़ी मसरत हो रही है कि रोज़ों के बाद एक ईद की जो तैयारियां हैं, ईद की खुशियों में शामिल हो रहे हैं। ये अल्लाह ताला का फजल है, करम है। तमाम आलम इस्लाम को, पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम को, इस जमहूरी मुल्क हिंदुस्तान को दिल की उम्मीद गहराइयों से ईद मुबारक पेश करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अपने फजलो करम से इस ईद उल फितर के बाबरकत त्यौहार से इस मुल्क में अमन और चैन आए, सुकून आए, भाईचारा आए और हम एक दूसरे की खुशियों में शामिल होते रहें। चलिए, हम एक दूसरे की खुशियों में शामिल हो जाए। मजीद जायजा आप तक में लाने की कोशिश करूंगा। आप हमारे साथ रहिए। तो नाजरीन, ये था ईद स्पेशल प्रोग्राम जो हमने आप तक लाने की कोशिश की। और यहाँ पे अगर बात करें तो आज हज़ारों की तादाद में मरकज़ी ईदगाह बानिहाल में लोगों ने नमाज अदा की। और कहीं ना कहीं पे अगर रामबन ज़िला की बात करूं, रामबन ज़िला के दर्जनों जगहों पे ईद उल फितर की नमाज अकीदत और एहतराम के साथ जो है वो पढ़ी गई। बात करें यहाँ पर रामबन ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन ने भी आज बानिहाल के अंदर ही जो है डिप्टी कमिश्नर रामबन ने भी नमाज ईद उल फितर अदा की। बात करें SSP रामबन और दीगर जो सिक्योरिटी जो के अफसरान हैं, उन्होंने यहाँ पर बानिहाल में आज सिक्योरिटी सूरत हाल का भी जायज़ा लिया। और कहीं न कहीं पे सियासी लीडरान ने भी आज ईद उल फितर के मौके पर लोगों को यहाँ पर मुबारकबादी के पैगाम दिए। और कहीं न कहीं पे ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन का मानना है कि यहाँ पर ईद उल फितर के बाद जो नवरात्रा का त्यौहार भी जो है अब होने जा रहा है, तो उस हवाले से उनका ये मानना है कि रामबन ज़िला में जिस तरह से भाईचारा जो है वो देखने को मिलता है, जिसकी मिसाल जो है वो दी जाती है, जो हम भी समझते हैं, तो ये मिसाल जो है इसी तरह से पूरे देश में जो है इससे बेहतर भाईचारे की मिसाल जो है हम मुस्तकबिल में देखना पसंद करते हैं। कैमरा पर्सन शाहनवाज के साथ आरिफ वहीद, गुलिस्तान न्यूज़।